Hello student, today we will discuss theory of chemical reaction, right? The theory was developed by Max Schutz and William Lewis in 1960 to 1980, right? And provide of a greater insight into the energetic mechanistic aspect of reaction, right? And it is based on काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, राइट? मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन की जो थियरी है वो थियरी किसके बेस पे है? तो कि काइनेटिक थियरी के बेस पे है, राइट? तो फर्स्ट कॉलिजन थियरी. तो collision theory is collision theory is according to the reactant molecule are assumed to be hard sphere, right? And reaction is postulated to occur when molecule collide with each other, right? मतलब कि ये जो collision theory है वो collision theory में जो reactant molecule है उसको एक hard sphere assume किया हुआ है, right? और वो रिएक्टेंट के बीच में जब भी कोलिजन होगा, राइट, तो ही वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, राइट? नेक्स्ट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? मतलब कि पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, राइट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, राइट? द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन mixture is known as the collision frequency Z, right? And collision frequency ZAB and reactions probability. So, for a bimolecular reaction, bimolecular element reaction means what? So, when two reactant is attached with each other, right, is called bimolecular elementary reaction, right? So, here A plus B attached with each other and converted into products, right? The rate of reaction can be expressed as rate is equal to ZAB e raised to minus EA upon RT, right? And in this reaction, ZAB is equal to the collision frequency of a reactant A and B, right? Means collision frequency मतलब कि A और B क्या होंगे? एक दूसरे के साथ कोलॉइड हो गए, राइट? कोलिजन होगा उसके बीच में, राइट? तो कितने रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? ZAB, राइट? एंड E raised to minus EA upon RT is equal to the frequency of molecule with energy equal to or greater than EA, right? And this equation compared with Arrhenius equation. If we compare this equation, right, rate is equal to with Arrhenius equation. Arrhenius equation is equal to what? So, okay, rate is equal to A into E raised to minus EA upon RT, right? So, in this equation, right, in a collision theory equation, ZAB and in Arrhenius equation A, right, both are equal, right? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो कि we can say that A is related to collision frequency, right? And above equation predict the value of a rate constant fairly accurate for the reaction, right? And that involve atomic species or simple molecules, right? But for a complex reaction, right? Complex reaction में क्या होगा? Significant deviation are observed. The reason could be that all collisions do not lead to the formation of product, right? मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन हो रहा है तो वो सब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, राइट? उसके लिए कुछ मतलब कि कितने मॉलिक्यूल कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए वो किसके बेस पे अकॉर्डिंग है, राइट? तो फर्स्ट रीजन है उसका कि द कोलिजन विल बी अकर बिटवीन मॉलिक्यूल. फर्स्ट रीजन इज के जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में कोलिजन होना चाहिए. सेकंड रीजन इज द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल collide with the sufficient kinetic energy means threshold energy and a proper orientation, right? मतलब कि उसके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, वो क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट होनी चाहिए. थर्ड, so as to facilitate breaking of bond between a reactant species, मतलब कि reactant species है उसके बीच का जो बॉन्ड है, राइट, वो बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड और न्यू बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, राइट, टू फॉर्म प्रोडक्ट.
are called as the effective collision. Probability or a steric factor P. To account for effective collision, the steric factor P is introduced, right? उसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इफेक्टिव कोलिजन थियरी के लिए एक स्टेरिक फैक्टर ऐड किया है, राइट, इंट्रोड्यूस किया है. एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट इन अ कोलिजन मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंट, मतलब कि मॉलिक्यूल के बीच में प्रॉपरली क्या होना चाहिए, ओरिएंट होना चाहिए, राइट. एंड रेट इज इक्वल टू P into ZAB e raised to minus EA upon RT, right? And the collision follows above equation will be product, right? मतलब कि above equation follow होगा तो ही क्या होगा, product form होगी. Okay? Next, explain that for any chemical reaction to occur, proper orientation must be required. Means कोई भी chemical reaction में अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए, राइट, तो उसमें क्या मस्ट है, तो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन मस्ट है, राइट. तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट, उसके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली. द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल्स collide with a sufficient kinetic energy, right, वो तो हमें पता ही है कि उसके बीच में क्या होना चाहिए, sufficient kinetic energy होनी चाहिए, right. The molecule are arranged in a proper orientation, वो proper orientation में arrange होनी चाहिए, right. So as to facilitate breaking of bonds between reactant species and formation of a new bond to form a product, right. क्या बोला है आपको कि proper ओरिएंटेशन में अरेंज होने चाहिए, राइट. तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक हो गए रिएक्टेंट स्पीसीज के बीच में एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड हो गया, राइट. तो हमें क्या मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी, राइट. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, राइट, फ्रॉम अ ब्रोमोमीथेन. व्हेन ब्रोमोमीथेन अटैच विद अल्कोहल या KOH या NaOH, राइट, तो उस टाइम पे क्या फॉर्म होगा, मिथेनॉल फॉर्म होगा, राइट. ब्रोमो इथेन, यहाँ पे ब्रोमो इथेन बोला है, राइट, लेकिन ये स्ट्रक्चर किसका है, ब्रोमोमीथेन का है, राइट. मतलब कि व्हेन ब्रोमोमीथेन अटैच विथ OH ग्रुप, राइट, तो हमें क्या फॉर्म होगा, ये हमारी प्रोडक्ट है, राइट, मिथेनॉल, राइट. डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, राइट. देखो यहाँ पे फर्स्ट है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, राइट, एंड सेकंड इज प्रॉपर ओरिएंटेशन. तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या होगा कि Br और OH, राइट, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, राइट. तो Br जो साइड से कार्बन से अटैच है ना, OH उसी साइड से क्या होगा, कार्बन से अटैच होगा, राइट. तो जैसे वो कार्बन के नजदीक जाएगा, एट दैट टाइम Br और OH दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा, राइट. वाई, बिकॉज दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, एंड ड्यू टू दिस रीजन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा, राइट. और हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगी. एंड सेकंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, OH टोटली ऑपोजिट साइड से क्या होगा, अटैच होगा, एंड एट दैट टाइम बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन, राइट, इज ब्रेक. कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, एंड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन OH ग्रुप एंड कार्बन, राइट, एंड इंटरमीडिएट इज फॉर्म. एंड लास्टली क्या होगा कि कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो टोटली ब्रेक हो जाएगा और कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड स्ट्रांगली फॉर्म हो जाएगा, एंड हमें क्या मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी, राइट. तो 3 इम्पोर्टेंट थिंग, फर्स्ट कि कोलिजन होना चाहिए, राइट. और वो जो कोलिजन है वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी से ही होना चाहिए, राइट. व्हाई, बिकॉज अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अगर वो एक दूसरे से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से कोलिड हो गए तो दो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, राइट. अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी लेस होगी तो भी वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, राइट. तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो सके, राइट. एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, तो कि ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, राइट. अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगी. देन समझ में आया, ओके. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है, राइट. नेक्स्ट हम लोग अब ये चैप्टर का टेस्ट लेंगे, ठीक है. आप लोगों को ये चैप्टर का टेस्ट लिखना है, ओके. देन हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे.
समझ में आ गया? हमारी लास्ट थियरी कॉलिजन थियरी इम्पोर्टेंट थियरी है। ओके, थैंक यू।